Reverend Father Dr. A. Rex Angelo, SJ Principal, St. Xavier's College, Jaipur. Respected resource person, Mr. Brijendra Singh, Member STMU, Government of Rajasthan. Coordinator SAP Committee, St. Xavier's College, Jaipur. Ma'am Bula, a very warm welcome to one and all. Today is the second day of our 7-day workshop on Swachhata Action Plan, and we have Mr. Brijendra Singh as the resource person who will enlighten us about the concepts of ODF and ODF+. I hand over to you, sir, for further proceedings. Sir, kindly switch on your video while you speak. Before that, Father, we request you to give your words of wisdom. Good afternoon to all of you. Why is so much? Hello? Can you hear me? Yes, Father. Okay. So good afternoon to all of you. Mr. Brijendra Singh, Member STMU, Government of Rajasthan, and Dr. Bola Chowdhury, Coordinator of SAP Committee, and other members of the committee and the esteemed staff and students. It gives me immense pleasure to interact with you on this great topic, which is very vital. As you know, coming from the south, where I have been witnessing a lot of indecent ways of people easing themselves in public for want of toilets. I am happy and proud to say in Rajasthan, I have not seen such a sight anywhere during my short span of my stay for 1.5 years. Open defecation free situation has been a successful program, as we came to know from Mr. Mohan IAS yesterday, Mr. Mohan Sharma IAS yesterday, that the government of Rajasthan has very consciously gone ahead building almost 72,000 toilets all over the state in order to make the state open defecation free. As a result, people are more health conscious, more hygienic, and also they have a sense of dignity, especially women folks in rural places. And then, as Mr. Mohan shared with us yesterday, there are 7 steps, and then the government of Rajasthan, with very committed and loyal officials, well trained for this purpose, have achieved this great task of open defecation free state in Rajasthan. So my sincere appreciation. Today we have in our midst Mr. Singh, who will further enlighten us on this topic. So a warm welcome to you, sir. And then I wish all staff and students a very good learning experience with the Professor Brijendra Singh ji. Thank you. God bless you. Thank you so much, Father. I request the resource person, Mr. Brijendra Singh, to carry forward, sir, and for further proceedings. फादर नमस्कार और पार्टिसिपेंट सभी को मेरा नमस्कार। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान ये अपने आप में एक माइलस्टोन नाम है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत ही कम समय में अति विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित की हैं। और मुझे बड़ा गर्व और प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आप सब साथियों को मैं राजस्थान में हुए बदलाव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं पीपीटी के माध्यम से मेरी बात रखूंगा आपके बीच में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग, क्योंकि ये जो विषय है सैनिटेशन बड़ा नीरस और बोझिल सा विषय है जिस पे अमूमन लोग रुचि नहीं रखते,
लेकिन गत 10 वर्षों के स्क्रीन शेयर पर, हाँ मेरा स्क्रीन डिसेबल्ड है मैडम। स्क्रीन शेयरिंग को अलाउ कीजिए। पर ओपन है। ओपन है, जी। ओके ओके ओके, शेयर करें सर। ओके। हो गई है। हाँ, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। अब आप लोग देख पा रहे हैं और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं लेकिन अभी प्रेजेंटेशन दिख नहीं रहा है हमें। प्रेजेंटेशन मेरा देख पा रहे हैं? जी सर, वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ अच्छा, आवाज सुने दे रहा है, प्रेजेंटेशन दिख नहीं रहा है। जी। यहाँ होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग का मैसेज आ रहा है मेरे पास, तो चेक करती हूँ सर, एक एक सेकंड। बार चेक कीजिए प्लीज। हो गया? ट्राई कीजिए। हाँ हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग, हाँ जी सर, जी अब सर। अब देख पा रहे हैं? ओके, स्टार्ट करूं मैं? हाँ आ, जी। जी। आ, मुझे जैसा कि बताया गया है, मेरा नाम एक तो मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, और ऐसा लग रहा है त्रुटि बस आप लोग के पास गलत वर्डिंग चली गई थी। तो मैं यहाँ पिछले 20 सालों से राजस्थान में स्वच्छता और पानी के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। और आज जो मैं बात करूंगा आप लोगों से, ओडीएफ ओडीएफ एस और ओडीएफ प्लस के परिप्रेक्ष्य में मैं मेरी बात रखूंगा। और गुजरा हुआ कल, आज और आने वाले दिनों में क्या इस मुद्दे को लेके बदलाव हुए और कैसे राजस्थान ने अपने लक्ष्यों को अर्जित किया, इस पे मैं मेरी बात रखूंगा। और मुझे लग रहा है सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा जी रहे हैं। जी। मैं मेरी बात कुछ रोचक तथ्यों के साथ आपके सामने रखना चाहूंगा। दुनिया की कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% हमारे हिस्से में है, भारत के हिस्से में है, लेकिन आबादी हमारी 17.7% है। और अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, जीवन प्रत्याशा की, तो 69.4 ईयर्स हमारी देश की है, और पूरे विश्व का औसत 72.81% है। और एक और भी पैमाना है जिससे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम कहते हैं, वो 28.7 है प्रति 1,000 जीवित बच्चों के जन्म पर। जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जिनके यहाँ 1,000 बच्चों पे केवल 1 या 2 या 2.1 या 2.4 बच्चों की मौत होती है। तो अभी हम लोगों को काफी आगे जाना है, और काफी सारे लक्ष्य को हमने अर्जित किया है इन पिछले 2 दशकों में। अगर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करें, जो बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तब्दील हो गया, तो उसमें जल और स्वच्छता दो ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जिसपे काफी जोर है। और एक जिम्मेदार देश होने के नाते हम लोग इन मुद्दों पे बहुत ही गहराई से कार्य कर रहे हैं। और पिछले 6 वर्षों में पूरा देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गया है, आप सभी को पता है। और राजस्थान ने उससे भी 1 वर्ष पहले मार्च 2018 में ही अपने आप को ओडीएफ घोषित कर दिया था। तो हम लोग निश्चित रूप से अच्छा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के प्रयास कर रहे हैं, जिसके परिणाम भी उत्साहजनक रहे हैं। और
धीरे धीरे हम लोग सारे लक्ष्यों को अर्जित करते जा रहे हैं। अगर ओडीएफ की हम बात करें तो अपने आप में बड़ा ये जादुई शब्द है, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। लेकिन जब तक इसके साथ में यदि हम गांव या ग्राम पंचायत या ब्लॉक या जिला या फिर राज्य या फिर देश या फिर दुनिया जैसे शब्दों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये शब्द अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में साफ सफाई की बात को शामिल किया गया था, बट इस पे कोई बहुत कारगर तरीके से कार्य नहीं किया गया। नाम मात्र की गतिविधियां होकर रह गई। उसके बाद एक अगला तारीख जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई और पंचायतों को अपनी व्यवस्था करने की जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें साफ सफाई ही शामिल था। साफ सफाई में उस दौर में बातचीत केवल इतनी थी, सड़कों और नालियों की साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था से संबंधित गतिविधियां पंचायतों के मार्फत की जा रही थी। एक अध्ययन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया, जिसमें यह बात निकल कर सामने आई कि पूरे देश में केवल 1% लोग ही शौचालय का उपयोग करते हैं और सरकार की योजना चलाने के बावजूद लोग इसकी मांग नहीं कर रहे हैं। शुरुआत में इस पे जोर था कि लोग सरकार से मांग करेंगे, सरकार फिर उनको स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। तो अगर 1986 से अब तक का फेज को हम लोग देखें तो ये स्वच्छता कार्यक्रम अलग अलग नामों से हमारे बीच में आता रहा है। पहले केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम के नाम से 1986 में हमारे बीच में आया। फिर इसमें कुछ तब्दीलियां की गई और यह संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से अप्रैल 1999 में हमारे बीच में बदलाव के रूप में आया। फिर बाद में निर्मल भारत अभियान 2012 में आया। फिर 2 अक्टूबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की। एक अच्छी बात ये थी इस मिशन में, घोषणा के साथ ही इस बात की भी घोषणा कर दी गई कि यह मिशन 2 अक्टूबर 2019 को पूरा होगा। तो चूंकि लक्ष्य किस दिन समाप्त होने ये पहले से तय थे, इसलिए पर्याप्त गति मिली और 39% जो कवरेज था अपने देश का, उसको हम लोग बढ़ाते हुए 100% तक के लक्ष्य को अर्जित कर पाने में सफल रहे। राजस्थान इससे करीब 1.25 साल पहले मार्च 2018 में ही पूर्ण से शौच से मुक्त हो गया। आज का दौर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का है, जो 2020-21 से लेके 2024-25 तक हमारे बीच में रहेगा। आज का दौर को हम लोग अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये ओडीएफ प्लस का दौर है। तो ओडीएफ प्लस के सफर में आने से पहले अगर हम देखें तो शुरुआत के दिनों में केवल एक बात पे सर्वाधिक जोर था कि व्यक्ति अपने घरों में शौचालय का निर्माण करे और उसका उपयोग सुनिश्चित करे अपने परिवार के साथ। इसमें जो एक पैरामीटर्स दिए गए कि शौचालय कैसा हो, तो उसमें सरकार का मानना यह था कि ऐसी तकनीक काम में ली जाए जो सरल हो, उपयोगी हो, ग्रामीण स्तर पे बनाने में आसानी हो और इसकी मरम्मत भी कुशलतापूर्वक स्थानीय स्तर पर किया जा सके। तो काफी शोध के बाद में 2 गड्ढे वाले जलबद्ध शौचालय की उत्पत्ति हुई, जिसको ट्विन पिट लैट्रिन कहते हैं हम। और ये काफी कारगर विधि थी और आज भी इस बहुत ही व्यापक स्तर पे देश में और राज्य में इसको उपयोग में लिया जा रहा है। सस्ता थी, सरल से आसानी से इसको बनाया जा सकता था और काम में परिवार सहित इसको लिया जा सकता था। एक रोचक बात इसमें यह थी कि इसके जो गड्ढे थे ट्विन पिट, वो 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर गहरे थे। दोनों के बीच की दूरी भी 1 मीटर थी। और अमूमन ग्रामीणों के बीच में जब इस चीज को लेके जाया गया तो लोगों ने कहा कि भाई ये गड्ढा तो बड़ा जल्दी भर जाएगा, 1 मीटर का ही है ये। लेकिन जब इसकी तकनीकी बातों को उनको विस्तार से बताया गया, समझाया गया कि भाई अगर 6 आदमी का परिवार यदि इसको तो लगातार उपयोग में ले तो इसको भरने में 4 से 6 साल का समय लगता है। और एक भरने के बाद में दूसरा गड्ढा को हम काम में ले सकते हैं और
और पैरेलली हम बार बार बदलाव करते हुए इसको काम में लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। एक विशेष बात इस पे ये थी कि हम लोग जिस तरीके से शहरों में अर्बन पेन यूज में लेते हैं, इसमें रूरल पेन का इस्तेमाल किया गया। रूरल पेन बड़ा खास था और इसमें अमूमन शहर के जो अर्बन पेन की तुलना में इसमें ढाल ज़्यादा थी। इसमें ढाल ज़्यादा होने से ये 25 टू 45 डिग्री की स्लोप थी इसमें। इस स्लोप के कारण इसमें पानी भी कम लगता है और फ्लश आउट में भी कम पानी की जरूरत पड़ती है। जबकि अमूमन शहरी शौचालयों में हम एक बार में फ्लश करते हैं तो 6 से 12 लीटर तक पानी उपयोग में ले लेते हैं। तो राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ पे पानी की बहुत ही समस्या है, ऐसी जगह पे ये टॉयलेट काफ़ी उपयोगी रहा और कम पानी में भी इसको हम लोगों ने काम में लिया और लोगों ने व्यापक स्तर पे इसको अपना समर्थन दिया। अब इसके पहले जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का एस्पेक्ट था उसमें अमूमन ये देखा गया है ग्रामीण क्षेत्र में, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो, कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली 80% जो बीमारियां हैं या तो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं या तो एक्सक्रीटा बोर्न डिजीजेज हैं। इन्हीं दोनों कारण से ही बीमारियां होती हैं और मक्खियों की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण है, जो खुले में जो ओपन डिफिकेशन होता है वहां से मल को व्यक्ति के मुख तक पहुंचाती है और व्यक्ति, बच्चा या जो भी व्यक्ति इसके संपर्क में आता है वो दूषित खाना खा करके बीमार पड़ता है। और अमूमन पीलिया, पोलियो, जुकाम, चेचक, अतिसार, पेचिस, हैजा, कुकुर खांसी, मलेरिया, फाइलेरिया या टीबी जैसे बीमारियों में कहीं न कहीं से ये कारण बनता है। खुले में शौच के कारण वातावरण आसपास में दूषित होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण दोनों ही इससे हो सकते हैं। अगर महिलाएं खुले में शौच के लिए जा रही हैं तो बार बार उनको उठना बैठना पड़ता है, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। और स्कूल में भी पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं शुरुआत में नहीं थी, इसलिए किशोरी बालिकाओं को की उपस्थिति भी महीने के उन खास दिनों में प्रभावित होती थी जब वो मेंस्ट्रुएशन फेज के दौर में होती थी। घरों में भी सुविधाओं का उपयोग पूरा परिवार नहीं कर रहा था। जो व्यक्ति रुचि लेने वाले थे, यूथ थे और महिलाएं तो जा रही थी, लेकिन जो ओल्ड एज वाले व्यक्ति थे, जो वृद्ध जन थे घरों में, वो इससे अभी भी बच रहे थे, बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। तो जबरदस्त कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की गतिविधियों के कारण लोगों तक इन बात को पहुंचाई गई, इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे और नुकसान को पहुंचाने में हम लोगों ने, देखिए, इस डायग्राम को इस्तेमाल में लिया जिसमें हम लोग ये बताया करते थे कि यदि खुले में आप शौच के लिए जाते हैं तो आपके हाथों के द्वारा, मक्खियों के द्वारा, खुली जगह के कारण और वाटर फैसिलिटी जहाँ अवेलेबल है उनके कारण कहीं ना कहीं से आपका भोजन प्रभावित होता है। मक्खियाँ यहाँ होती हैं, ये गंदगी को लेके आपके भोजन तक आती हैं और आपके भोजन पे बैठती है। इस भोजन को खा के आप बीमार पड़ते हैं और फिर आपको इलाज कराना पड़ता है। तो इसको हम रोक सकते हैं। तो रोकने में शौचालय कैसे बैरियर का काम करेगा उसको हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि यदि हम शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो आपके एक्सक्रीटे का संपर्क मक्खियों के साथ में नहीं होगा, क्योंकि आप खुले में शौच नहीं जा रहे हैं। और यदि आप हैंड वॉश कर रहे हैं साबुन से, तो भी अगर हाथ में कोई गंदगी आ गई है तो हैंड वॉश से वो साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी और तो भी आपका भोजन दूषित नहीं होगा। तीसरे एंगल से अगर हम देखें कि अगर हम खुले जलाशयों से पानी भर के ला के पीने का काम ले रहे हैं, उसके बदले में यदि हमने हैंडपंप को काम में लिया तो जमीन के अंदर से निकलने वाली पानी आमतौर पर प्योर है, उसमें किसी तरह का बाहर से दूषण नहीं गया है, तो इस पानी को आप उपयोग में लेकर के बीमार होने से तो बच सकते हैं। तो ये काफ़ी कारगर विधि रही। इस विधि को लोगों ने समझा और जाना और अपने घरों में लोगों ने टॉयलेट्स बनाए, काम में लेना चालू किया। अगर ओडीएफ की हम बात करें तो ओपन डिफिकेशन फ्री के पहले फेज में तो लोगों को अपने घरों में शौचालय बनाकर उपयोग में लेने की बात थी। लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनाया, उपयोग में लिया, इससे पूरा थ्रस्ट था। लेकिन इसके अलावा भी 7 बातों पे भी चर्चा होती रही है शुरुआत के दिनों से, कि व्यक्ति जो पानी पी रहा है उसका सुरक्षित रख रखाव हो, जिस वाटर सोर्स से वो पानी लेके आ रहा है उसके आसपास की साफ सफाई हो, पानी को छान के लेकर के आए, घर में वो स्टोरेज सही ढंग से करे
और अगर मटके में वो स्टोरेज कर रहा है तो डंडीदार लोटे से ही उसको निकाले, उसको ढक के रखे, ताकि स्रोत से पानी आप तो सुरक्षित लेके आ गए हैं, लेकिन अगर आप घर में अगर सही तरीके से जल को मटके से निकाल के पी नहीं रहे हैं तो दूषण की संभावना रहती है और वो पानी सुरक्षित फिर नहीं रह पाएगा। तो लोग व्यवहार परिवर्तन से लोगों में ये बदलाव भी आया और लोगों ने हैंडपंप या उसके आसपास साफ सफाई रखी, हैंड यूजर्स कमेटियां बनी जिन्होंने हैंडपंप के रख रखाव में अपनी भूमिका निभाई और मरम्मत की जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। पानी लोगों ने छान के अपने घर में स्टोर किया, विशेष परिस्थितियों में पानी को उबाल के भी लोगों ने पीना प्रारंभ किया। तो पानी के दूषण की समस्या से निपटान में हमें मदद मिली। और घर के आसपास के बेकार पानी का निपटान भी करना था। अगर घर में बर्तन धोने वाला पानी है अगर नालियों में जा रहा है तो नाली साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप किचन गार्डन में काम में ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, चलो उसका उपयोग हो रहा है। मानव मल के निपटान के लिए टॉयलेट्स की बात थी, लोगों ने टॉयलेट्स बनाए, परिवार से इसको काम में लिया। कूड़ा करकट एवं गोबर के सुरक्षित निपटान की भी बात उस समय थी, जिसमें घर से निकलने वाला रोजमर्रे का कचरा हो या फिर मवेशी पालकों के यहाँ गोबर प्रचुर मात्रा में निकलता है और गोबर से खाद बनती है जो खेतों में उपयोग में ली जाती है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से इसका निपटान नहीं किए जाने के कारण गोबर के पोषक तत्व नष्ट हो रहे थे, तो उसको बाद में ओडीएफ प्लस में इस पे काफी जोर दिया गया है और अलग से कंपोस्टिंग वर्मी कंपोस्टिंग पे ट्रस्ट है, आगे हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। घर और भोजन की स्वच्छता की बात इसमें थी कि हम तो स्वस्थ रहे ही रहें, ये जो भी भोजन बनाने वाला महिला या पुरुष है उसको हैंड वॉश करके ही खाना बनाना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता पे जो था स्कूलों पे में बड़ा गंभीरता से इस पे कार्य किया गया आरंभिक दिनों में, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं शुरुआत के वर्षों में वो उनके जीवन का आधार बनता है और वो आदत में शुमार होती है वो सारी की सारी बातें। तो स्कूल में पर्सनल हाइजीन पे काफी जोर दिया गया, साफ सफाई की बात उनमें बताई गई कि रोज स्नान करना चाहिए, नेल कटिंग, माउथ क्लीनिंग और ये सारी की सारी बातें उनको बताई और समझाई गई। फिर ये बच्चे स्कूल में सुनी हुई बातों को चल के अपने घर तक लेके आते, अपने पेरेंट्स से अपने साथियों से चले, जिससे हम लोग बाद में ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब अगर सारे एक गांव के निवासियों ने या ग्राम पंचायत के निवासियों ने यदि अपने घरों में सारी सुविधाएं अपना ली तो अपने आप समुदाय स्वच्छ हो जाएगा, ऐसी भी कामना की गई थी। लेकिन इसके अलावा भी यदि सड़कें और नालियां जैसी जो चीजें थी जिसमें पंचायत की भूमिका अहम हो जाती है तो उसकी साफ सफाई की सामुदायिक व्यवस्था की गई, जहाँ पे जो मोहल्ले के वासी थे उन्होंने अपने अपने हिस्सों की सड़कों और नालियों को साफ करना शुरू किया, जिससे गांव एक साफ सुंदर गांव के रूप में तब्दील हुआ। ये सारी की सारी बातें जब ओडीएफ प्लस की हम बात नहीं कर रहे थे तो ये तभी भी ये की जा रही थी। बाद के दिनों में इस पे बहुत गहराई से काम हुआ और अल्टीमेटली हम लोग इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे। अगर इन मुद्दों को अगर हम देखें गहराई से, जो 7 बातें यहाँ बताई गई हैं, तो ये सब ओपन डेफिकेशन फ्री को ले जाने में कारगर रही और एक अच्छा माहौल बना जिससे हम लोग सफल हो पाए। हैंड वॉशिंग पे बड़ा जोर था क्योंकि 40% जो बीमारियां फैलने की जो स्रोत हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो हाथों के माध्यम से ही होती है। तो हैंड वॉश पे स्कूलों में सिखाया गया, अलग अलग महलों में गाँव में बहुत सारे कैंपेन इसके लिए किए गए और लोगों को जोड़ा गया। अभी कोविड के दौरान भी इन मुद्दों को फिर से वापस लाया गया और अभी बहुत कारगर तरीके से लोगों ने हैंड वॉश किया और हाथों को सैनिटाइज किया ताकि वो बीमारियों से बच सकें और जो संक्रमण वाली बीमारियां हैं उससे उनको मुक्ति मिले। ओपन डेफिकेशन फ्री अगर हम शब्दावली की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि आमतौर पर गांव या ग्राम पंचायत जो खुले में शौच से मुक्त हो गई हो। कहने का मतलब ये है कि वैसा गांव जहाँ पे कोई भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए नहीं जा रहा हो, सारे लोगों के घर में शौचालय हो और व्यक्ति अपने परिवार सहित सभी लोग उसको काम में ले रहे हों और खुले में कहीं भी नल या यूरिनी के चिन्ह नहीं नजर आते हों, तो वैसी ग्राम पंचायत या ब्लॉक या जिला को हम लोग इसके
परिप्रेक्ष्य में रख सकते हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज या ओपन डिफिकेशन फ्री ग्राम पंचायत या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट। ये तकनीकी शब्दावली 2014 के बाद व्यापक रूप से प्रयोग में आई है, जब देश में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का आरंभ भारत के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया गया। गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र में भी शौचालय की सुविधा हो, यह सुनिश्चित किया गया, क्योंकि ये तीनों केंद्र ऐसे हैं ग्राम के स्तर पे जहाँ पे ग्रामीणों का अक्सर आना जाना होता है, जहाँ एक से अधिक लोगों की आवाजाही लगी रहती है। तो यदि वहाँ पे अगर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो अमूमन उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, जिससे हम ओपन डेफिकेशन के स्टेटस को बनाए रखने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपने कार्यक्रम में इस पे भी बड़ा जोर दिया गया। पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों को 100% शौचालय से सुसज्जित किया गया और वहाँ जाने वाले लोग उसको उपयोग करें और उसकी साफ सफाई को भी निरंतर ध्यान में रखा गया। कोविड के दरमियान में एक बात ये भी निकल के आई थी कि बड़े संख्या में लोगों का पलायन हुआ था, जो प्रवासी आबादी अपने गांव को छोड़ के शहर में जाकर के रोजगार सृजन में तल्लीन थी। उन्हें इस विषम परिस्थिति में वापस अपने गांव को लौटना पड़ा था। तो निश्चित रूप से जो परिवार लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रह रहे थे, उनके घरों में शौचालय नहीं बने थे या उनके घरों में शौचालय नहीं थे, वो अगर एलिजिबल थे तो भी इनके घरों में नहीं थे, क्योंकि कई ऐसे केसेस भी सामने आई थी जिसमें परिवार 5 सालों से 10 सालों से वो शहर में रह रहा था। तो ऐसे समय में सरकार के द्वारा एक विशेष अभियान चला करके सभी गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया। चित्र आप नीचे देख सकते हैं। इन परिसरों को निर्माण करने के पीछे सरकार की सोच ये थी कि वैसी आबादी जिनके घरों में तत्काल शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो भी खुले में शौच के लिए नहीं जाएंगे और वो सामुदायिक शौचालयों को उपयोग में लेंगे। इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी या तो ग्राम पंचायत संभाल रही है या तो स्थानीय जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उपयोग में लेने वाले समूह हैं, उनके द्वारा इसको संधारित और संचालित किया जा रहा है। तो ये चीजें भी थी। जो सुविधाएं और सहूलियत निरंतर रूप से स्थापित ग्राम के स्तर पे कर दी गई थी, उसमें 2 कमेटियों ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। एक तो थी ग्राम पंचायत की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और दूसरी थी निगरानी समितियां। ये स्थानीय वॉलेंटियर्स का ऑर्गेनाइजेशन था, स्थानीय स्तर पे तैयार किया हुआ, जिन्होंने इस बात को इंश्योर किया, 100% सुनिश्चित किया कि जिनके घरों में टॉयलेट्स हों वो बिल्कुल टॉयलेट्स को उपयोग में ले। यदि बाहर जा रहे हैं तो उनको रोका गया, उनको टोका गया, पुनः उनको वापस उनके घरों में शौचालय के लिए भेजा गया। और जिनके पास में तत्काल में कोई व्यवस्था नहीं थी तो उनको सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की ओर मोड़ा गया कि आप स्वच्छता परिसर की सेवाओं को उपयोग में लीजिए, न कि खुले में शौच के लिए आप जाएंगे। तो अब अच्छे क्वालिटी के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता परिसर भी है, चित्र में भी आप देख सकते हैं। और चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे स्कूल हो, वहाँ के शौचालयों को भी साफ रखा गया। अक्सर उसमें जो ताले बंद रहते थे उसको खोला गया और शिक्षकों को भी इसके लिए पाबंद किया गया कि वो इसकी साफ सफाई की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करवाएं। बच्चे खुले में शौच के लिए या पेशाब के लिए न जाएं, ये भी सुनिश्चित करें। ये सारी गतिविधियां निरंतर की गई और एक बड़े बदलाव में ये कारगर भूमिका निभाने में सफल हुए। वह गांव जो ODF प्लस विलेज की अगर हम बात करें तो वैसे गांव की इसमें कामना की गई है, कल्पना की गई है, जो खुले में स्टेटस, स्वच्छता का स्टेटस तो उसने प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसको निरंतर वो बना के रखने में भी सफल हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि अब से 2 साल पहले खुले में शौच से मुक्त हो गया था, लेकिन इन दिनों फिर वहाँ लोग खुले में शौच के लिए जाने लग गए। गाँव के आसपास या सार्वजनिक स्थलों पे मल विसर्जन की गतिविधियां बच्चों की या वृद्धों की दिखाई देने लगी। तो इसमें ये भी सुनिश्चित करने की बात है। और इसके अलावा इस विलेज ODF प्लस विलेज में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को भी रेखांकित किया गया अलग से, कि जो प्रथम दृष्टि में दिखाई देना चाहिए कि वो साफ सुथरा भी है और कहीं पे गार्बेज नहीं है, कहीं पे नालियों में गंदा पानी एकत्रित नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा, जैसा कि आप चित्र में गाँव की छवि देख रहे हैं वैसा है। तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए ODF प्लस के अंतर्गत में कि न केवल साफ सुथरे चीजों को हमने स्वीकारा बल्कि उसको निरंतर बनाए रखा।
बनाए रखने के परिणाम स्वरूप एक व्यवस्था बनी और वो व्यवस्था निरंतर चल रही है। अब ODF प्लस के अंतर्गत में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पे काफी जोर दिया गया, और वो किन गांव में इसका काम सघन रूप से आरंभ किया जाए उसके लिए कुछ सरकार ने पैमाने तय किए, जिसमें यह था कि कम से कम जिन घरों में 80% घरों में सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र सहित पर ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन हो। मतलब पहले से लोग कोई एक कारगर व्यवस्था बना करके अपने कचरे का निस्तारण कर रहे हों, इसके साथ ही वे अपने मवेशियों से उत्पन्न कचरे को खाद बनाने की गतिविधियां कर रहे हों, सामुदायिक गड्ढे का उपयोग करके खाद बना रहे हों, या कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग व्यक्तिगत स्तर पे या सामुदायिक स्तर पे कर रहे हों और इस खाद को अपने काम में ले रहे हों, या प्लास्टिक के कचरे की छटाई और संग्रहण प्रणाली की स्थापना करने के लिए इच्छुक हों, तो वैसे गाँव में DPR बनाए गए, पहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया और वहाँ पे आगे की गतिविधियाँ की गई। और इनमें प्लास्टिक कचरा प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण था। और प्लास्टिक कचरा क्योंकि अमूमन शहरों के साथ ग्रामीण दोनों स्थलों पे इसकी पे चर्चा करने की जरूरत है। अभी एक स्लाइड के बाद मैं इस पर बातचीत करूंगा। लेकिन जो हमारे टॉयलेट्स में जो मल एकत्रित हुआ वो 4 से 5 सालों में जैविक खाद के रूप में तब्दील हुआ। यह बड़ा एक जादुई एहसास था। लोगों को ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा कभी खाद में तब्दील हो सकता है, लेकिन खाद में तब्दील हुआ। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसके हैं जहां लोगों ने अपने घरों से में शौचालय के सेप्टिक टैंक या फिर 2 गड्ढे वाले पिट के भरने के 1 साल के उपरांत में इस सोना खाद को बाहर निकाला और निकाल के इसको काम में लिया। एक मुहिम चली। चित्र में आप देख सकते हैं, ये हमारे भारत सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के सेक्रेटरी परमेश्वर अय्यर महोदय हैं, जो टॉयलेट पिट में खुद उतर के ये एक्सक्रीटा जो खाद में तब्दील हो गया उसको बाहर निकाल रहे हैं। राइट वाले चित्र में आप देख सकते हैं, अक्षय कुमार है, यूवी एक्सक्रीटा निकाल रहे हैं जो खाद में तब्दील हो गया है। कालांतर में वो उससे खेती में काम में लेने से अच्छी पैदावार भी होती है और बहुत ही न्यूट्रिशियस ये चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें पोषक तत्वों की कमी है। जैसा कि स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि ये अगर कोई गड्ढा भरता है तो 12 से 18 महीने में ये सोने खाद के रूप में तब्दील होता है। यह खाद सूखा, बदबू से रहित होता है, इसमें हानिकारक जीवाणु नहीं होते, ये जैविक खाद होती है एब्सोल्यूट। ये खाद 300 से 400 रुपए प्रति किलो बाजार में उपलब्ध है। लाभार्थी चाहे तो अपने सोख्ता गड्ढे में यह खाद तैयार कर सकता है और निकाल कर स्वयं अपने खेतों में काम में ले सकता है। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पर्याप्त मात्रा होती है जो कि पौधों के पोषण के लिए उपयोगी है और कारगर है। इन दोनों इस खाद का उपयोग जैविक खेती में प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। जयपुर शहर के निवासियों ने भी ये नोटिस किया होगा, आप सभी इससे अवगत होंगे कि 22 गोदाम में जो उपभोक्ता सहकारी भंडार है वहाँ पे जैविक खेती के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो बाजार से 10 से 20 रुपए अधिक की कीमत पे उपलब्ध हैं। लोग एक परिपाटी परंपरा से विकसित हुई है कि हम केमिकल और फर्टिलाइजर युक्त फसलों के उत्पाद नहीं लेंगे, ताकि इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स के परिणाम भी सामने आए हैं। तो इस खाद के उपयोग वाली जैविक खेती को सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है और इसके प्रोडक्ट्स की अच्छी आय भी हमारे कृषक कर रहे हैं। ये दोनों चीजें बड़ी कारगर हैं। सोना खाद फसलों के लिए गुणकारी है, इससे पैदावार अच्छी होती है, खाद्यान्न की गुणवत्ता और स्वाद में भी कंपेरेटिवली रासायनिक खाद की तुलना में अच्छा है। ये जैविक कृषि उत्पाद केंद्र काफी सारे हैं, आपके आसपास में भी मिल जाएंगे। कई सारे ऑनलाइन केंद्र अवेलेबल हैं जहाँ से ऐसे उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। एक व्यक्ति के 1 वर्ष के मलमूत्र एवं कचरे से औसतन 5.8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस और 2.5 किलोग्राम पोटास प्राप्त हो सकता है। ये कैलकुलेशन है कि भाई न केवल आदमी के बल्कि हम जानवरों के मलमूत्र से भी हम ये चीजें बना सकते हैं। और कई नवाचारी किसानों ने इस पे काम किया है और इसके परिणाम बड़े उत्साहजनक रहे हैं। घरों में मल से सोना खाद बनाकर हम मैला ढोने की प्रथा संबंधी नियम की पालना में भी सहयोगी बन सकते हैं। पूर्ववर्ती दौर में अगर आपको याद हो तो जब
ड्राई लेटरिन्स होते थे तो एक आया आती थी और रोज ड्राई लेटरिन्स में मल को उठा के गाँव के बाहर ले जाके वो इसका निपटान करती थी। तो मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट बना करके इसको प्रतिबंधित किया गया। धीरे धीरे ये प्रथा देश से समाप्त हो गई है और हम सारे लोग अपने घरों में टॉयलेट्स को यूज में लेकर के इस मुहिम को और आगे ले जा सकते हैं। प्लास्टिक की मैं बात कर रहा था। प्लास्टिक एक बड़ा गंभीर समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए भी। तो इसमें दो मुद्दों पे हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें बात कर रही हैं, क्योंकि पंचायत में ये चीजें बिकती हैं बड़े मात्रा में। अगर हम देखें तो पंचायत में जो जनरल स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको शादी विवाह जैसे समारोहों के लिए प्लास्टिक की प्लेट कप्स मिल जाएंगे, जो एक बार में यूज करने के बाद में उसको फेंक दिया जाता है, जो अनावश्यक कचरा एकत्रित होता है पंचायत में, जिसको मवेशी खा के परेशान होते हैं, मौत होती है। और फिर ये कचरा नष्ट नहीं होता, इसको जलाना प्रतिबंधित है, फिर भी लोग जलाते हैं, इससे तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक सरकार ने प्रतिबंधित कर रखे हैं। ऐसे कुछ जो बाई ओर का जो मेरा पोस्टर्स है उसमें ये 6 तरह की चीजें हमने बताई है, चाहे पॉलिथीन बैग हो, प्लास्टिक बोतल हो, प्लास्टिक प्लेट्स हो, प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक सेसे और स्टायरोफोम कप प्लेट। ये सारी चीजें शहर और ग्रामीण हर क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। ये काफी समय तक नष्ट नहीं होती है, जमीन में पड़ी रहती है, जानवरों के मुंह में जाने के बाद में वो उनके पेट में जाती है और उनकी अकाल मृत्यु होती है। तो इसको रोकने की जरूरत है। सरकार ने इसके लिए एक्ट पारित किया है 2 अक्टूबर 2019 से। प्लास्टिक को रोकने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, इसके विकल्पों की बात की जा रही है और इस पे भी चर्चा की जा रही है कि भाई इन विकल्पों को हम लोग काम में लें। भाई अब हम घर से बाहर अगर खरीदारी करने जा रहे हैं तो प्लास्टिक को के बैग के बदले हम जूट या कपड़े के थैले को काम में लें। पानी के बोतल को हम लोग अवॉइड करें, प्लास्टिक के बोतल में पानी को न रखें, स्टील के बोतल को काम में लें। चाय या अन्य पेय पदार्थों के लिए हम लोग अलग से जग को काम में ले सकते हैं, ऐसा प्लेट भी काम में ले सकते हैं जो हम लगातार यूज में ले, बार बार उपयोग में ले सकें। लंच बॉक्स, अक्सर छोटे बच्चों को हम लोग प्लास्टिक वाले सुंदर से लंच बैग में उसको स्कूल भेजते हैं, उससे भी बचने की जरूरत है। हम लोग स्टील के पॉट्स को काम में ले सकते हैं। खाने के बर्तनों में अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा गया है कि प्रीति भोज में लोग प्लास्टिक के और स्टेरोफोम के प्लेट्स और कप को काम में लेते हैं। इसको भी रोकने की जरूरत है। पंचायतें इसमें प्रस्ताव ले रही हैं और गांव में जो बड़े स्तर पे इसकी खरीद और बिक्री होती है, गांव की दुकानों को वो पाबंद कर रही है कि वो ऐसी चीजें ना बेचें। इसके बदले अगर हम लोग पत्तल दोनों जैसी चीजों को प्रमोट करेंगे तो वो चीजें कारगर भी होगी और पत्तल दोनों से एक तो काफी लोगों को रोजगार स्थानीय स्तर पे मिलेगा और ये पत्तल दोनों जमीन में सड़कर पुनः जैविक खाद के रूप में तब्दील होकर पौधों का पोषण करेंगी। ये सारी चीजें हैं। और प्लास्टिक के पॉट के बदले, स्टायरोफोम के बदले हम लोग चीनी मिट्टी के या शीशे के या धातु के बर्तनों को भी काम में ले सकते हैं, जो बार बार रीयूजेबल हो सकता है। तो पंचायतें इसमें सघनता से काम कर रही हैं। पंचायतों ने ग्राम पंचायत के स्तर पे एक प्रस्ताव लेकर के ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं कि उनके दुकानदार इन चीजों को ना बेचें और कम से कम उसको काम में लें। प्लस दूसरा, जो टेंट हाउस है जहाँ पे शादी ब्याह के शाम मतलब व्यवस्था के करते हैं जो लोग, वो लोग भी अब वो स्टील के बर्तनों को काम में लें, ना कि ये स्टेरोफोम और दूसरे कप प्लेटों को काम में लेने के बदले जिनको वो एक बार यूज में लेने के बाद फेंक देते हैं। तो उसके रोकने के मुद्दे पे भी बड़ा सघन रूप से ये राज्य में काम किया जा रहा है। एक बड़ा कैंपेन समय समय पे चलता रहता है जिसमें इन बातों को ग्रामीणों को बताया जाता है और हर जिले ने अपने एक इससे रिलेटेड एक्ट पारित किया है। उस एक्ट में दंड या सजा के भी प्रावधान है, तो पंचायतों अपने स्तर पे उसको फॉलो करके वो शास्ति के प्रोविजन को भी लागू कर सकती है। तरल कचरा प्रबंधन में हम बात करेंगे तो इसमें इस बात पे भी जोर था कि ओडीएफ प्लस के अंतर्गत में कि प्राथमिक विद्यालय, पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी स्थलों पे इसका भी प्रबंधन किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक फ्लोट पॉपुलेशन प्रतिदिन आती है। 40 से 50 या 100, 200, 400 बच्चे भी हो सकते हैं विद्यालयों में। पंचायतों में भी 25-50 लोगों का आना जाना तो दिन लगा रहता है। तो वहाँ पे भी अगर जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज लोग काम में ले रहे हैं तो वो भी अच्छी होनी चाहिए, कारगर होनी चाहिए। उसके जल का रिसाव
और उसके टंकियों की स्टोरेज सही होनी चाहिए, वो निकल के कहीं बाहर नहीं जाए और उसका निस्तारण सही तरीके से हो। बेकार पानी या फ्लश की जो व्यवस्था है आप, या फिर रूटीन में जो हम काम में पानी को ले रहे हैं उससे जो निकलने वाला जो वाटर है, उस पानी को भी हम लोग नालियों के मार्फत सही जगह तक ले जाएं। नालियाँ बीच में अवरुद्ध हो जाती है, सबसे बड़ी समस्या नालियों की ग्रामीण क्षेत्रों में ये है। बंद तो जाती है ये, लेकिन साफ सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी अंतिम छोर तक नहीं जा पाता, बीच में कहीं ना कहीं रुका रहता है। वहाँ पे जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे सड़ांध पैदा होती है, मक्खी मच्छर आते हैं और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करने में ये कारगर होते हैं। तो देखिए चित्र ये भी एक कोटा जिले के एक गांव का है, और जहां उन्होंने समुदाय के स्तर पे मिलकर अपने गांव का प्रबंधन किया है। सड़कें बिल्कुल साफ है, नालियां साफ सुथरी है, नाली में कोई कचरा नहीं है, पानी बिल्कुल बह के आगे की ओर जा रहा है। तो ये चीजें की जा सकती हैं। वैसे इसमें चैनल नालियां या व्यक्तिगत और सामुदायिक सोख्ता गड्ढे का उपयोग करके हम और भी जो विकल्प हैं उस पर बात कर सकते हैं। नालियां तो उन सरकार बनाती है अपने कार्यक्रम में, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे भी यदि समुदाय विशेष में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने घरों के पानी का निस्तारण वो अपने आंगन में कर सकता है। आंगन में मतलब ऐसा है कि आपको नाली की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान में ऐसे एवरेज वाटर लेवल 400 से 600 फीट नीचे है। और हम यदि पानी को जमीन के अंदर यूज में लेने के बाद में अगर डालते हैं तो निश्चित रूप से वो रिचार्ज होने में मदद करेगी। प्लस दूसरा, अगर आपके जहाँ पे धोने की व्यवस्था है घर में, रसोई घर के आसपास में अगर कोई छोटी सी किचन गार्डन या बगीची विकसित कर लेते हैं जिसमें फल फलदार या पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं, जिसकी भी सिंचाई उस पानी से हो सकती है, उसको और अतिरिक्त पानी देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये चीज करी जा सकती है। सेप्टिक टैंक को भी काफी मात्रा में लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया है, और अमूमन उसका आउटलेट अक्सर नालियों में खुला हुआ देखा गया है। ऐसा भी समस्या है कि वो नालियों में वो आउटलेट खुला है, और वो उसके निस्तारण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और ऐसे पानी को वो जा करके कहीं दूषण नहीं फैला इसके लिए सामुदायिक सॉकपिट का निर्माण कर रही है। और वो ऐसे खुले स्थान, सार्वजनिक स्थल जहाँ पे 4 से 6 घरों के पानी को ले जाकर के जमीन दोज किया जा सके और उस पानी का कंटेमिनेशन किसी गांव के अन्य लोगों तक न हो पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। रसोई घर, स्नान घर से निकलने वाले पानी के लिए अगर मान लीजिए आप ढानियों में निवास कर रहे हैं तो वहाँ पे एक समस्या ये होती है कि वहाँ पे नालियाँ हम कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सघन बस्तियाँ नहीं, सघन बस्तियों में नालियों की व्यवस्था एक कारगर विधि है। तो वहाँ पे हम लोग सोख्ता गड्ढों को काम में ले सकते हैं। किचन बाथरूम में के आसपास दोनों जगह इसको बनाया जा सकता है। सिंपल सरल तकनीक है, 1 बाई 1 मीटर का एक गड्ढा, उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं हम लोग। नीचे वाले हिस्से में देख सकते हैं आधे ईंट के आकार के टुकड़े हैं, उसके ऊपर 1/3 ईंट के आकार के टुकड़े, उसके ऊपर 1/4 ईंट के आकार के टुकड़े, उसके ऊपर सैंड है, उसके ऊपर एक मटका रखा हुआ है जो बेकार मटका काम में नहीं आता है, उसमें हम छेद कर देते हैं, उसमें नारियल के रेसे भर देते हैं, जिससे किचन का पानी या और बाथरूम का पानी इसमें आकर के फिल्टर होकर के जमीन के अंदर चला जाता है। तो अगर ये दोनों विधि के लिए हमें किसी से मदद की भी जरूरत नहीं है, हम कहीं भी इसको बना सकते हैं जहाँ हमारे घर में 1 बाई 1 मीटर का जगह उपलब्ध है, तो हम पानी को जमीन के अंदर डाल सकते हैं। नालियों के हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी जमीन के अंदर भी जाएगी जिससे जमीन में नमी रहेगी। इसके आसपास हम किचन गार्डन विकसित कर सकते हैं, और या तो भूजल पुनर्भरण में भी ये कारगर तकनीक काम में आ सकती है। इसके अलावा राइट साइड में आप देख रहे हैं ये मैजिक पिट है। ये मैजिक पिट ये 10 से 20 घरों के पानियों को लेके आ रहा है, और एक यहाँ पे गड्ढा निर्मित किया गया है। इसमें ये अंदर जाकर के ऑब्जर्व होता है, रिश्ता है, जिसके बारे में जो कल का सत्र है हमारे साथी आप विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। तो ये विधियां हैं, इस विधियों से इन चीज़ों को किया जा सकता है। ओडीएफ प्लस में एक और बात की गई है कि अगर गाँव को अगर हम प्रथम दृष्टया गाँव में जाते हैं, अगर देखें नज़र घुमा के, तो हमें प्रथम दृष्टया चारों तरफ साफ सफाई दिखाई देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी गांव को देखा जो ओडीएफ प्लस के दायरे में आता हो, वहाँ गंदगी फैली हो, फिर भी ओडीएफ प्लस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रथम दृष्टया साफ सुथरा हो वो, और 80%
सार्वजनिक स्थलों में न्यूनतम कूड़ा नजर आए, मतलब गाँव को देखने के बाद में यदा कदा कहीं कूड़ा है तो है, अन्यथा बिल्कुल साफ सुथरा हो, पानी का जल जमाव बिल्कुल कम हो, प्लास्टिक कचरे का भी ढेर ना हो, वैसा गांव ODF प्लस के श्रेणी में आता है। और वैसे गांव को हम दृश्यमान स्वच्छ गांव भी कर सकते हैं। ये शब्दावली भी हमारे कार्यक्रम में इस्तेमाल में आती है। अब इसको बनाए रखने के लिए, इसको निरंतरता मेंटेन करने के लिए भी सरकार ने जितने भी सामुदायिक स्वच्छता परिषद बने हैं, विद्यालय हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत घर हैं, वहाँ पे स्वच्छता संदेशों को तो और कचरा प्रबंधन के संदेशों को, शौचालय के उपयोग के संदेशों को, या फिर शिशुओं के मल के निस्तारण के संदेशों को एज ए बैनर के रूप में दीवारों पे पोस्टरिंग करवाई है, ताकि निरंतर रूप से हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन की याद दिला सकें और इसके शौचालय के उपयोग और ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के उपयोग के महत्व को लोगों के मानस में बिठा सकें। ये 4-5 बातें हैं जिसपे इन दिनों काफ़ी जोर है कि किस किस गाँव में अमूमन हम लोग ODF की स्थिरता और लगातार शौचालय के उपयोग की बात करेंगे। अपनी ऐसी गतिविधियों के अंदर साबुन से हाथ धोने की बात हमें निरंतर करनी है। जैविक कचरा जो खाद में तब्दील होने वाला कचरा है और खाद बढ़े के उपयोग के माध्यम से इसका प्रबंधन करना है, जिसमें हम कंपोस्टिंग विधि से खाद बना सकते हैं, या तो चाहे तो हम बर्मी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें 2 तरह के फायदे होंगे हमें। तो खाद की प्राप्ति होगी, अथवा हम केचुए भी बेच करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रबंधन घर के स्तर पे से लेके पंचायत के स्तर पे करना है। पंचायत समिति के स्तर पे इसकी एक यूनिट बनेगी, इसके बारे में कल हमारे साथी विस्तार से आपको बताएंगे। सोख्ता गड्ढे के माध्यम से भी तरल कचरा प्रबंधन आदि की गतिविधियां की जाएंगी। हम व्यक्तिगत स्तर पे भी बना सकते हैं, पंचायत के स्तर पे भी बना सकते हैं, समुदाय के स्तर पे सरकार के मार्फत बनाई जाएगी तो इसके लिए सरकार राशि उपलब्ध करवाती है। व्यक्तिगत स्तर पे नरेगा के समन्वय से बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें की जा सकती हैं। एक खास कड़ी है हमारे कार्यक्रम में स्वच्छाग्रही, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वच्छता के लिए समुदाय से आग्रह करने वाला। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आग्रह करेगा आप समुदाय से, समुदाय के संपर्क में रहेगा, समुदाय को बार बार जाकर के वो समझाइश करेगा। कुछ बातें जो मैंने बैलून्स में आपको बताने का प्रयास की है, इन बातों में उसकी भूमिका पंचायत में हो सकती है। राजस्थान में ऐसे 35,000 स्वच्छाग्रही अमूमन एक गांव में एक स्वच्छाग्रही उपलब्ध हैं। ये वॉलंटियर्स हैं। ये टास्क बेस्ड काम करने के बाद में उनको भुगतान किया जाता है। और क्या क्या कर सकते हैं, मोटी मोटी बातें आपके सामने तो स्क्रीन पे विजुअल है, जिसमें ये है कि समय समय पे जो कैंपेन चलेंगे विभिन्न मुद्दों पे आधारित, तो वो अभियान चलाकर घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे। गीले कचरे से जैविक खाद बनाने की विधि वो बताएंगे। ODF की स्थिति बनाए रखने में सहयोग करेंगे वो। ठोस और तरल प्रबंधन के लिए वो व्यक्ति को जाकर के प्रेरित करेंगे। समुदाय को हाथ धोने की आदतों के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। वो इस बात का इंश्योर करेंगे कि लोग खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धो रहे हैं। गाँव के घरों में जब वो गाँव का भ्रमण करेंगे तो वे देखते चलेंगे और इसको इंश्योर करेंगे, उसको इंश्योर करेंगे। समुदाय को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पे भी जानकारी देंगे। पेयजल स्कीम के संचालन, रख रखाव और समुदाय की सहभागिता से सुनिश्चित करवाएंगे, क्योंकि पानी, सरकार का लक्ष्य ये है कि 2024-25 तक सभी घरों में 50 लीटर पानी वो उपलब्ध करवाए, वो साफ और शुद्ध हो। तो इसके लिए भी समुदाय को जोड़ने की जरूरत है, उसके भी वो पहल करेंगे। समय समय पे सरकार के द्वारा सर्वे की विविध गतिविधियां आयोजित की जाती है, इसमें वो मदद करेंगे। सोना खाद के उपयोग के लिए ग्रामीणों को तैयार करेंगे, इसकी बनाने की विधियां बताएंगे। निगरानी समितियां गांव में बनी हुई, तो पहले जो गांव के में खुले में शौच जाने वालों की निगरानी करते थे उसको सक्रिय करेंगे, उनकी सेवाओं से वो लाभान्वित होंगे। ODF समय समय पे ODF ग्राम पंचायतों का सत्यापन किया जाता है, ODF प्लस का भी सत्यापन किया जाता है। तो सत्यापन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये सहभागी की भूमिका निभाएंगे। समुदाय में सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर जो शौचालयों का ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण किया गया है, उसके रख रखाव में अगर कहीं पे कोई कमी आ गई है तो उसको दुरुस्त कैसे किया जाए,
कैसे कर सकते हैं, इसकी तकनीकी मदद करेंगे, जानकारी देंगे। मल युक्त कीचड़ प्रबंधन के निपटान की भी बात हमारे कार्यक्रम में कही जाती है, बताई जाती है, क्योंकि 5 सालों के बाद में जो ट्विन फिट टॉयलेट्स काम में लिए जा रहे थे उसके गड्ढे अब भर चुके हैं, सोना खाद तैयार हो गई है, तो उसको निकाल के काम में लेने की बात है। तो ये चीजें भी की जाएंगी, इन सारे चीजों में वो मदद करेंगे। इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है और जो प्लस की गतिविधियों में के लिए इनको समय समय पर प्रशिक्षण देके हम उनको तैयार कर रहे हैं। पिछले साल भी उनको प्रशिक्षित किया गया था, इस साल भी उनको प्रशिक्षित किए जाने की ये एक कार्यक्रम है। जब ये सारी गतिविधियां होने लग जाएंगी तो जिलों ऐसे गांव की पहचान करेंगे जो पहले से ओडीएफ प्लस है या ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त करने के करीब हैं। इन गांवों को घोषित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले इनकी प्रगति की सूचना इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम IMIS में दर्ज की जाएगी और भारत सरकार के द्वारा मोबाइल ऐप की मदद से गांव में जो सृजित सभी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की जो परिसंपत्तियां बनाई गई हैं, सामुदायिक स्वच्छता केंद्र को अनिवार्य रूप से जियो टैग किया जाएगा ताकि पोर्टल पे जाके उन चीज़ों को देखा जा सके और उसकी स्थिति का आकलन किया जा सके। जियो टैगिंग के लिए भी सरकार ने अधिकृत कार्मिक को नियुक्त कर रखा है, जो ब्लॉक या जिला स्तर पे होगा, उसके मार्फत ये सारा का सारा कार्य संपादित किया जाएगा। क्षेत्र में कनेक्टिविटी के मुद्दों के मामले में अधिकृत व्यक्ति DDWS के मोबाइल ऐप या फील्ड पे जियो टैगिंग ऑफलाइन भी कर सकता है, फिर कनेक्टिविटी प्राप्त करने पर डाटा को IMS से सिंक कर सकता है। ये सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है क्योंकि राजस्थान के कई क्षेत्रों में अमूमन नेट की कनेक्टिविटी न्यूनतम होने के कारण उनको जियो टैगिंग में परेशानी होती थी, तो ऑफलाइन भी फोटोग्राफी करके काम किया जा सकता है और नेट कनेक्टिविटी प्राप्त करने की स्थिति में इस गतिविधियों को संपादित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत अगर सारी शर्तें पूरी कर लेती है तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को ODF घोषित करेगी। अगर ग्राम पंचायत स्वयं अपने आप को ODF घोषित करती है तो उसका मतलब ये होगा कि ग्राम पंचायत अपने समस्त गांवों को मिला के एक साथ ODF घोषित कर रही है। एक आदर्श स्थिति है कि ये ग्राम पंचायत के समस्त गांव ODF घोषित हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई एक या दो गांव जहाँ पे सारे घटक पे काम कर लिया गया है तो उसको भी ODF प्लस घोषित किया जा सकता है। दोनों तरह की स्थितियां हैं, लेकिन आदर्श स्थिति तो तभी होगी जब सारे के सारे गांव और पंचायत एक साथ ही ODF घोषित करें। तो हम टुकड़ों में भी कर सकते हैं, अगर पूरा काम एक साथ हमने कर लिया है तो सरपंच उसको एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। ODF अपलोड करके सभी गांवों को ODF प्लस IMS घोषित करना सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के संपर्क में ग्राम पंचायतें हैं तो सारी की सारी जो IMS से जुड़ाव की जो बातें हैं वो ब्लॉक स्तर पे होंगी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और ग्राम ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो दोनों के मार्फत भी इन चीज़ों को सुनिश्चित करवाया जा सकता है। विकल्प के रूप में ग्राम पंचायत अपने गांव को अलग अलग समय पर ODF प्लस घोषित कर सकती है। उनके पास ये भी एक मौका है कि चाहे तो अगर एक गांव को ही उन्होंने अच्छे तरीके से तैयार किया है तो वो उसको भी घोषित कर सकती है। अगर घोषित करती है तो एक अच्छा सर्टिफिकेट वो जारी कर सकती है, ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर के अखबार में इसकी घोषणा कर सकती है और वो बता सकती है कि फला गांव या फला ग्राम पंचायत ODF प्लस घोषित हो गई। और जब एक गांव ODF घोषित हो जाएगा तो इस जिले की जिम्मेदारी है कि 90 दिनों के अंदर में ODF प्लस के स्टेटस का वो सत्यापन करवाए और सत्यापन के दौरान यदि कुछ कमियां पाई जाती हैं तो 90 दिनों का एक विंडो पीरियड है, इस बीच में उस त्रुटि या उस कमी को दूर करके किया जा सकता है और 90 दिनों के भीतर अगर वो चीज़ों को पूरा कर लिया जाता है, जो कमी पाई थी उसको दुरुस्त कर लिया जाता है तो IMIS पोर्टल पे सत्यापित गाँव का चिन्हीकरण कर लिया जाएगा और सत्यापन के बाद हर साल एक बार गांव को ODF प्लस का सत्यापन किया जाएगा। तो सत्यापन की प्रक्रिया एक बार पूरी होने से हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये स्टेटस को बनाए रखना और उसको लगातार तो इस स्थिति को एक साल के बाद में पुनः आकलन करके देखना कि हमने जो पिछले साल के स्टेटस पे चित किया था आज भी वो स्टेटस बरकरार है
इसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी और ताकि स्थिति बनाए रखी जा सके और ऐसा न हो कि ओडीएफ का खिताब किसी ग्राम पंचायत से छीन करके नॉन ओडीएफ की श्रेणी में आ जाए। जिले को प्रत्येक वर्ष ओडीएफ प्लस गांव का 100% सत्यापन आवश्यक है। राज्य दल एक नंबर सत्यापन करेंगे जिसमें प्रत्येक गांव से कम 5% वार्षिक आधार पर सभी घरों को शामिल किया जाएगा। जिले में जो घोषित गांव है ओडीएफ प्लस उसका सत्यापन जिले द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर से भी चिन्हित गांव में से सैंपलिंग करके 5% गांवों का सत्यापन किया जाएगा। कुछ चेकलिस्ट है मोटा मोटी ओडीएफ प्लस विवरण को सत्यापन करने के, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर ये टीम जाती है तो इन मुद्दों पे खास तौर से अपना ध्यान केंद्रित करती है कि सभी घरों में शौचालय है, व्यक्तिगत स्तर पे है, साझा है या सामुदायिक स्तर तक भी पहुँच। यदि किसी के घर में अगर शौचालय नहीं भी है लेकिन वो सामुदायिक शौचालय की सेवाएं ले रहा है तो वो भी आगे श्रेणी में आएगा। गांव में कम से कम एक कार्यात्मक सामुदायिक स्वच्छता परिसर जरूर होना ही चाहिए जिसमें पुरुष महिला अलग अलग शौचालय हो। जो सीएससी सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है उसमें 3 शौचालय बनाए गए हैं, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए और एक दिव्यांगजनों के लिए। तो ये सुविधाएं उपलब्ध हैं हर गांव में। अगर किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ नहीं है तो ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सुविधाएं भी काम में ले सकता है। गांव के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत घर ऐसे कार्यात्मक शौचालय होने चाहिए इन जगहों पे जहाँ महिला पुरुषों के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध हों। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, इसको भी देखा जाएगा, उसकी साफ सफाई भी देखने की बात इसमें है। अगर आंगनबाड़ी केंद्र, ऐसा भी है आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना कई गाँव में ये निजी घरों में की गई है या भाड़े के किराए के मकानों में की गई है। उसी स्थिति में वहाँ पे शौचालय की स्थिति नहीं भी हो सकती है, लेकिन पास यदि सार्वजनिक शौचालय है या पास के विद्यालय में शौचालय की सुविधा है तो ऐसे स्कूलों को कंसिडर किया जाएगा या आंगनबाड़ियों को कंसिडर किया जाएगा। अगले पैरामीटर्स में गांव के सभी सार्वजनिक स्थानों में न्यूनतम कूड़े दिखने चाहिए। न्यूनतम स्थिर जल अपशिष्ट की जो मात्रा वही न्यूनतम ही नजर आना चाहिए, प्लास्टिक का कचरा कहीं नजर नहीं आना चाहिए। फिर 5वें में है 80% घरों में, स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत घरों में बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन की व्यवस्था है। घरों से जो भी कचरा निकल रहा है प्रतिदिन उसमें जैविक अजैविक कचरे का छटाई करने के बाद में जो जैविक कचरा है जिसको हम खाद में तब्दील कर सकते हैं वो परिवार या समुदाय के स्तर पे ऐसे गड्ढे बना करके हम खाद में तब्दील कर रहे हैं। चाहे बायोगैस प्लांट बनाया गया है, चाहे कोई अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से उसको खाद में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा गांव में प्लास्टिक पृथक्करण की संग्रहण प्रणाली है या नहीं है। वैसे प्लास्टिक जो अमूमन बिकने वाली है ग्रामीण उसको बेच देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जो डबल लेयर प्लास्टिक्स हैं या 50 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक हैं जो एक बार यूज होने के बाद में किसी काम के नहीं रहते, वो अक्सर बिखरे पड़े रहते हैं, जिसको कोई खरीदता भी नहीं है। तो ऐसे कचरे को संग्रहित करना है पंचायत से। उन सारे कचरे को संग्रहण करने के उपरांत पंचायत समिति की गाड़ी आकर के उसको कलेक्ट करेगी और पंचायत समिति अर्थात ब्लॉक के स्तर पर उसका निवारण किया जाएगा। इसकी एक प्रणाली राजस्थान में अभी विकसित की जा रही है और ये भी देखना है कि वो 4 या 5 तरह के जो पोस्टर्स थे ओडीएफ एस से संबंधित, खुले में शौच से मुक्ति की निरंतरता हेतु, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के हेतु, स्वच्छता संबंधी आदतें और व्यवहार हेतु, इसका गांव में सही जगह पे प्रदर्शन किया गया है या नहीं किया गया है। अगर ये सारी की सारी चीजें प्रदर्शित की गई है तो निश्चित रूप से वो पंचायत ओडीएफ घोषित किया जाएगा और इस स्थिति को निरंतर बनाए रखने में सफल हो सकता है। साथियों, मैं पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मेरा एक चैनल है सैनिटेशन टॉक्स। आप और भी सैनिटेशन से संबंधित विविध गतिविधियों को जानने और समझने में रुचि रखते हैं तो यूट्यूब पे जाकर के उसको देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मेरी बात यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। यदि किसी के प्रश्न हो तो प्रश्न आमंत्रित है।
धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। हर सुबह घर के बाहर वो गाड़ी आती है और कहती है स्वच्छ भारत का इरादा। हमें जी आज ये कर बहुत प्रसन्नता हुई कि इस मिशन का काम चल रहा है। जी वैक्सीन के इस दौर में हम नैतिक मूल्य और मानव मूल्य भूल चुके थे, लेकिन आज जी आप मिशन ने हमें काफी जागरूक किया है। और मैं समझती हूँ कि जिन्होंने भी आपका सेशन अटेंड किया हो, जी बहुत जी सारी चीजें पता है लेकिन उनका रिवीजन नहीं था। जी जी आप मिशन ऑफ इंडिया के बारे में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बारे में बताया। और आपने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ये कहता है, ऐसी रिसर्च किया है कि 1% ऑफ पॉपुलेशन ही टॉयलेट यूज करती थी। और 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की योजना का की तैयारी शुरू हुई और आजकल ODF प्लस का दौर है। जी सर जी। आप बताइए कि किस तरह से एक्सक्रीटा जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स में तब्दील किया जा सकता है 18 से 20 वीक के अंतराल में। जी कुछ आ, सर। हाँ, ये हम लोग अपने कार्यक्रम में ट्विन पिट टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं। 2 गड्ढे वाला जलबंद शौचालय, जो देखिए मैंने पीपीटी में आपको दिखाया था। हाँ जी सर। एक बार मैं फिर से उस स्लाइड को लाता हूँ वापस। ट्विन पिट टॉयलेट, यस, ये सामने है आपके। ये ट्विन पिट टॉयलेट बड़े खास थे और इसको काफ़ी शोध के बाद में लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था। और ये 1 बाई 1 मीटर का एक गड्ढा है और इस गड्ढे में देखिए, ये चित्र आप देख रही है सामने, आप अगर हाँ विजिबल है तो ये जी जंक्शन चेम्बर के साथ में कनेक्ट है और ये पाइप सीधे हमारे पैन के साथ में कनेक्ट है। पैन जो राइट साइड में चित्र दिख रहा है, ये रूरल पेन है। ये हम लोग जो शहरों में अर्बन पेन काम में लेते हैं उसके तुलना में ये डिफरेंट है। इसमें स्लोप ज़्यादा है। इसमें 25 से लेके 45 डिग्री तक की स्लोप होती है अलग अलग कंपनी के ब्रांड के हिसाब से। और जिसमें जितनी ज़्यादा स्लोप होगी निश्चित रूप से कम पानी का इस्तेमाल होगा। इसको हम लोग काम में लेते हैं। शुरुआत में तो 1 मग पानी डाल लिया, उपयोग में लिया, फिर दिन इसके बाद में ये हम तो फ्लश आउट करते हैं। 1 या 2 मग पानी की जरूरत पड़ती है। ये गड्ढा आप देख रहे हैं, ये हॉनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर है। इस गड्ढे में आपको नजर आ रहा होगा। जी सर। इसकी एक लेयरिंग तो पक्की चिनाई होती है, दूसरे लेयरिंग में एक एक ईंट को छोड़ दिया जाता है जमीन के अंदर में। ये ओपन खुला होता है। तो इसमें स्क्रीटा ये जो पानी का भाग है जो 80% होता है, 80% तक जल होता है स्क्रीटा में, जमीन इसको ऑब्जर्व कर लेती है। 20% ही सॉलिड वेस्ट बचता है जो इसमें स्टोर होता है। इसी तरीके से अगर 4 से 6 व्यक्तियों का एक परिवार यदि इसको निरंतर उपयोग में ले रहा है तो जी 4 से 5 साल में ये जो 1 बाई 1 मीटर का ये गड्ढा है ये भरता है। भरने के उपरांत में ये जो जंक्शन चैम्बर बीच में आपको नजर आ रहा है, इसको हम इस तरफ से बंद कर देते हैं और ये दूसरी तरफ के हिस्से को खोल देते हैं। यहाँ पे खोलने की व्यवस्था होती है। हाँ तो जब ये हम ऐसा करते हैं तो ये बंद होने के बाद में दूसरा काम में उपयोग में लेना चालू हो जाता है। और इसको हम छोड़ देते हैं। तकरीबन 1 साल तक ये बंद रहता है। 1 साल तक बंद रहने के उपरांत पे इसमें जो भी हमारा एक्सक्रीटा इकट्ठा हुआ था, ये क्योंकि 1 ही मीटर तक होता है तो एरोबिक रिएक्शन के माध्यम से बैक्टीरिया इसको खाद में तब्दील कर देते हैं। जी और सर। 1 साल के बाद में जब इसके ढक्कन को हम हटाएंगे तो इसमें से बिल्कुल चाय की बुरादे की तरह, चाय पीने के बाद में जिस चाय को हम लोग बाहर फेंकते हैं जी उसी सूरत में ये खाद आपको मिलेगी जिसमें कोई स्मेल नहीं होगी। दूसरा, अगर रूटीन में अगर आप देखें कि अगर हम लोग सेप्टिक टैंक को काम में ले रहे हैं तो जिस दिन हमारे मोहल्ले में किसी व्यक्ति विशेष के घर के सेप्टिक टैंक की सफाई होती है तो हाँ जी पूरा मोहल्ले में खुशबू फैलती है उसके। सभी को पता चल जाता है कि किसी फला व्यक्ति के घर में इस टैंकी की सफाई हो रही है। जबकि इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। इसको बहुत ही आसानी से, क्योंकि गड्ढा भी 1 मीटर का है तो आपको अलग से किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। हम ढक्कन हटा के फावड़े से निकाल सकते हैं। 1 बोरे के आसपास ये खाद निकलेगी। केवल इसमें एक ही प्रिकॉशंस रखना होता है कि ये केवल हम बारिश के दिनों में नहीं निकालेंगे, 4 महीने छोड़ करके। बाकी किसी भी दिन हम इसको निकाल सकते हैं और निकाल करके खेतों में हम इसको काम में ले सकते हैं। अमूमन पैदावार में आपको 50 से 70% तक की ग्रोथ मिलेगी अन्य
खाद की तुलना में। एक अच्छी तरह की खाद है। मैं आपको इसलिए एक और एग्जाम्पल कोट करूंगा यहाँ पे। केसर एक बहुत ही कीमती दवाई के रूप में काम आने वाला भी चीज है। हम खीर में भी डालते हैं, कई जगह इसको यूज में लेते हैं, चढ़ाते भी हैं। ये दवा भी बनती है काफी सारी इससे। ये केवल कश्मीर में होता है केसर। तो केसर के प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर को यूज में लेने से उसके प्लांट्स मर जाते हैं, बड़े नाजुक होते हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीटा के इसी सोना खाद वाले फर्टिलाइजर को ही काम में लेकर के केसर का प्रोडक्शन करते हैं। और आपको पता ही है कि जो भारत का जो केसर है दुनिया में अच्छे क्वालिटी के केसरों में शुमार होता है। तो जी साउथ में काफी सारे जगहों पे इस खाद को लोगों ने काम में लिया, उपयोग में ले रहे हैं। क्योंकि ये खाद क्योंकि एक गड्ढे में बनी है, इसमें बहुत सारा तो होती नहीं है ये, तो बहुत आसानी से आप काम में भी ले सकते हैं। और एक आज के दिनों में एक बड़ी समस्या है कि भाई आपके यहाँ अगर चेम्बर साफ करने वाला आ रहा है इन दिनों, तो चेम्बर को उसने शक करने के बाद में ऐसे ओपन प्लेस में कहीं जाकर के वो उसको टैंक को खाली कर देता है। तो एक दूसरा कारण बनता है, जिस समस्या को आप सही कर रहे थे, इसका निदान कर रहे थे, वो जाकर खुले में करने के बाद में वो स्थिति उतनी ही दूषण फैलाने वाली बन जाती है। तो उसका निस्तारण भी अब हमको ट्रेंचेस खोद के जमीन के अंदर करवानी चाहिए। या फिर अभी तो जो नया फेज आया ओडी प्लस में, इसमें तो ये बात है कि वैसे क्लस्टर के बीच में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जाएं, या शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके सराउंडिंग की ग्राम पंचायतों को उसके साथ में कनेक्ट किया जाए, और वहां से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा निकल रहा है उसका निस्तारण किसी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पे किया जाए, ताकि ओपन में करने से जो समस्या फैलने वाली है उसको रोका जा सके। जी जी सर। सर, हम आपके आभारी हैं कि आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ वक्त निकालकर आज हमारे सेशन में आने की हमें अनुमति दी। मैं प्रश्न, अगर किसी का कोई प्रश्न है, somebody is interested to ask something to sir, सर मैं अपने प्रश्न से शुरू करती हूँ। जी। ग्रामीण के रोजगार हेतु आपके यहाँ क्या प्रावधान है? क्या एक बार फिर से प्रश्न दोहराएं? सर, ग्रामीण युवाओं के रोजगार हेतु आपके यहाँ क्या प्रावधान है? मैडम एक्चुअली में हम लोग केवल सैनिटेशन और को ही हैंडल करते हैं, तो अपना दायरा बड़ा सीमित स्तर पे है इस मामले में। और क्योंकि रोजगार एक व्यापक इशू है, इस पे अलग से राजस्थान कौशल विकास मिशन कार्यरत है। राजीविका महिलाओं का एसएचजी ग्रुप चल रहा है, जिसमें भी यूथ को इन्वॉल्व करने की बात है। हमने सैनिटेशन कार्यक्रम में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको इन्वॉल्व किया है, क्योंकि हमारा काम का जरा बड़ा लिमिट है। हम लोग स्वच्छता और जल के निवारण के मुद्दों को लेके ही काम करते हैं। तो हम लोगों ने एसएचजी समूह को इसमें इन्वॉल्व किया है, कचरा के कलेक्शन के लिए, उनकी सेवाएं लेने के लिए, सेग्रीगेशन करके वो बेच करके आय अर्जित करती है, इसके लिए कंपोस्टिंग प्रक्रिया में फैसिलिटेशन के लिए, इन 3 मुद्दों के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि जिन जिन जिलों में राजीविका के समूह कार्य कर रहे हैं महिलाओं के, तो उन महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए। तो इसके अंतर्गत तो हम लोग ये कर रहे हैं। जी सर। जी। somebody wants to ask some question? सर, हम फिर से आपके आभारी हैं और भविष्य में आशा रखते हैं कि आपका सहयोग इसी। सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, ये 10 जी। स्टाफ की तरफ से है। जी। ये पूछ रहे हैं, जी। Can we take urban houses kitchen waste also into consideration? हमारे घरों के किचन से जो वेस्ट निकलता है उसको जी। भी जोड़ा जा सकता है। जी। जी। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2014 में 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ था अपने देश में, आ, उस समय में 2 कार्यक्रम एक साथ लॉन्च हुए थे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो शहरी क्षेत्र में भी ऑलरेडी पैरेलली ये कार्यक्रम चल रहा है। वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि शहरी जो कूड़ा कचरा है वो लिमिटेड है, क्योंकि उसमें जैविक कचरा काफी कम मात्रा में है, बाकी दूसरे कचरा ज्यादा है। तो शहर के स्तर पे भी ये चीजें की जा रही है, लेकिन बड़ा दुखद स्थिति है। मैं खुद भी जयपुर में ही प्रताप नगर में रहता हूँ। जो कचरा वाली गाड़ी सुबह आती है वो सेग्रीगेट करके नहीं लेती। हम ग्राम पंचायत के स्तर पे जहाँ एक बार एडवोकेसी कर रहे हैं कि भाई कचरे का 2 कचरा पात्र रखिए, अलग अलग कचरे पात्र में आप एक में जैविक कचरा रखिए जो
खाद में तब्दील हो जाए, खाद में परिवर्तित हो जाए, या दूसरा कचरा का पात्र ऐसा रखिए जो खाद में तब्दील नहीं होने वाला कचरा है। तो यहाँ भी जब गाड़ियाँ, जब आपके अलग अलग किए हुए कचरे को अगर आप घर में करती भी हैं, आप जागरूक महिला हैं, तो भी वो एक ही जगह एकत्रित करके लेके आते हैं। शहर में अभी ये कल्चर विकसित नहीं हुआ है, डेफिनेटली उनको भी जगाने की जरूरत है। अगर वो करके ले जाते हैं तो इसमें जो बुनियादी सिद्धांत है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, कि जहाँ पे ये कचरा तैयार हो रहा है, जहाँ पे कचरा पैदा हो रहा है, अगर सोर्स पे ही अगर हमने इसका निवारण या सेग्रीगेशन का काम कर लिया तो आगे वाले चरण में आपको बहुत ही कम निवेश करके इसके परिणाम अच्छे प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन हम सेग्रीगेशन वाले स्टेज को जितना दूर लेके जाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें अलग तरीके की टेक्नोलॉजी भी काम में लेनी पड़ेगी। तो व्यक्तिगत स्तर पे की जा सकती है। हम घरों के स्तर की अगर हम बात करें, खुद मैं मेरी बात करता हूँ, दूसरों की बात तो मैं क्या करूँ कि मेरे घर में जो जैविक कचरा जैसे सब्जियों के छिलके हैं या तमाम चीज़ें निकलती हैं, तो मैं खुद मटके में स्टोर करता हूँ। मटका सिंपल मटका है जो हम पानी पीते हैं वो तो 6 महीने के बाद में पानी ठंडा करना अमूमन बंद कर देता है। तो ऐसे मटके का पड़े ही होते हैं घर में सभी के, या अगले सीजन में हम नया मटका लाते हैं तो पुराना यूं पड़ा रहता है। तो उसमें बस हमें करना इतना ही है कि पेंदे में एक छोटा सा छेद कर देना है और ऊपर नेक के पास में 4-5 छेद हमें कर लेने हैं और उसमें कचरा डालते जाइए। मतलब 20 से 30% शुरुआत में हम सूखे पत्ते डालेंगे, बाकी आप घर का कचरा डालते जाइए और सप्ताह में एक बार उसको चलाते रहिए। और नीचे एक पॉट रखिए उस पॉट पे, ताकि इसमें रिसाव होगा तो बहुत एक लीचेट निकलेगा। लीचेट एक लिक्विड होगा जो अगर अभी अमेजन पे जाएंगे तो लीचेट की एक बोतल की कीमत 100 रुपये है। ये भी अच्छे क्वालिटी की खाद होती है। प्लस ये जो खाद आप 40 से 45 दिनों में घुमाते रहेंगे प्रति सप्ताह में, तो ये खाद में तब्दील हो जाएगा। उसके ऊपर एक दूसरा पॉट रख दीजिए, तब तक उसमें खाद बनेगा। तो घर के स्तर पे मैं खुद भी कर रहा हूँ, आप चाहेंगे तो मैं इसका वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ। तो हम लोग कर सकते हैं और ये एक बड़ा रोचक विषय है। मतलब ये सैनिटेशन अमूमन शुरुआत में तो जब मैं 2005 में इस फील्ड में आया था काम करने, अब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बहुत ही रोचक और मजेदार है, बहुत स्कोप है इसमें काम करने का। और जैसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप जो भी साथी इस सत्र को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, किसी गांव में कोई प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम मिलकर कर सकते हैं। मेरी बहुत रुचि है इस फील्ड में काम करने की। चाहे आपके कॉलेज के बच्चे हो, चाहे कुछ फैकल्टी हो, कुछ करने का मानस बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हो, कुछ कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो इसी बहाने सैनिटेशन के नाम पे, तो वो हम कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक अच्छा कदम होगा। मेरी कोशिश भी है, अभी 2 महीने पहले ही मैंने एक चैनल बनाया सैनिटेशन टॉप, जिसके बारे में आपको बता रहा था। इसमें भी मेरी कोशिश ये है कि राज्य में और देश में जो भी नई चीज़ें आ रही हैं सैनिटेशन को लेकर, जो जानकारी लोगों को चाहिए, तो उसी पे मैं इस पे वीडियो बना के डालता हूँ। हालांकि पिछले 1 महीने से तो मैंने वीडियो नहीं डाला है, फिर भी 5-7 वीडियो पड़े हैं, पिछले 2 महीने हो गए इसको बनाए हुए। तो आप इसको देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। कोई भी मजेदार सवाल हो सैनिटेशन को लेकर, आपके मन में कोई आइडिया हो, कोई विचार हो, तो डेफिनेटली मेरे को शेयर कीजिए। हम लोग उसको आगे ले जाने में आपके लिए सहायक साबित होंगे। जी धन्यवाद सर। आज के सेशन का हम करते हैं और आपका पुनः पूरे कॉलेज कोर्स